Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve JEE Mains previous year question of magnetism. Okay. So our first question is MCQ single correct answer. If a circular coil A of radius R, current I is flowing in another coil B the of radius 2R, a current flowing 2I is flowing, then the ratio of magnetic fields BA and BB produced by them will be. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो ऑफ BA डिवाइड बाई BB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक कॉइल है जिसका रेडियस R है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और एक अनदर कॉइल है जिसका रेडियस 2R है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 2I. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल ए एंड कॉइल बी. ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं. एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πr इंटू थीटा होता है. हियर वी टॉक अबाउट द whole circle. We have to find out the magnetic field at its center. Then we put the value of theta equal to 2 pi. And in coil number A, the value of current is I. Okay. And radius R into theta 2 pi. Then we get this expression for loop 1. Okay. And for loop second we get this expression. Here the value of current is 2I and radius 2R into theta 2 pi. If we take the ratio BA divided by BB, we get the answer 1. The ratio of BA divided by BB equal to 1. Okay. So BA divided by BB equal to 1 we get. So our right answer will be option number A. ओके, आप सभी लोगों को समझ आ ही गया होगा. ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मास, if a electron and proton having same momentum, sorry this is momentum, same momentum inter perpendicular to a magnetic field, then option number A curved path of electron and proton will be same, ignoring the sense of revolution. Option number B, they will move undeflected. Option number C, curved path of electron is more curved than that of proton. Option number D, path of proton is more curved. चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा, देन दे मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, देन द रेडियस देन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? आर इक्वल टू क्यू डिवाइड आर इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी होता है, वेयर एम बी इक्वल टू मोमेंटम. ओके, where q is the charge of particle
P is the momentum of particle and B is magnetic field. Here PQ, B are constant for electron and proton. Therefore, the radius will be same. As we know that the charge of electron proton is same, and the value of mass and velocity ratio is also constant for electron and proton. It means momentum, charge and magnetic field is constant for both electron and proton. Therefore, the radius will be same. Okay. As our answer come out that the radius of the both electron and proton is same, then curve path of electron and proton will be same, ignoring the sense of revolution. So our right answer will be option number A. Okay. Our next question is MCQ single correct answer. The time period of a charged particle undergoing a circular motion in a uniform magnetic field is independent of option number A speed, option number B mass, option number C charge, option number D magnetic induction. As we know that time period equal to 2 pi m divided by qb. It means it is depend upon the value of mass, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड. मतलब किस पे डिपेंड करता है? मास, चार्ज, मैग्नेटिक इंडक्शन. और किस पे नहीं डिपेंड करता है? स्पीड के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है. चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू एम मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड पी इज टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी. ठीक है. जैसे कि हमने पहले भी बताया कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है? टी इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी होता है. ओके. द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल. जो हमारी टाइम पीरियड होती है वह किसके वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है? स्पीड के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है. ओके. टाइम पीरियड अगर स्पीड के वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी टाइम पीरियड, बस मास, चार्ज और मैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करेगी. ओके. बिकॉज टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड स्पीड in case of a charged particle undergoing circular motion in uniform magnetic field is independent of speed. Okay. चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q moving with velocity v describe a circular path of radius r when subjected to uniform transverse magnetic field of induction B. The network done by field when the particle completes one full circle is. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q, मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ बना रहा है आप रेडियस r, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में चला गया और मैग्नेटिक इंडक्शन बी. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल. ओके. इस क्वेश्चन हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है. ओके. इन क्वेश्चन गिवन दैट एक पार्टिकल जो मास m का है और चार्ज q है, मूविंग विथ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और क्या बना रहा है? एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. जब सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा? आउटसाइड लगेगा.
और जो वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर होगी डिस्प्लेसमेंट उसका। ओके, एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर then we can say that theta equal to 90 degree, then f equal to sorry, then work done equal to f dot ds into cos पाई बाई टू। cos पाई बाई टू की वैल्यू कितना होती है, जीरो हो जाएगी। जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं एक बार और। द वर्क डन कितना होता है, W इक्वल टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा। ओके, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, 90 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू each other, so we can say that theta equal to 90 degree, f dot ds cos 90 degree, then this expression will be zero, then we can say that therefore work done is zero. Okay, after solving this question we come to know that our answer will be zero, or the work done in this case will be zero because force and displacement is perpendicular to each other. Okay, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए चार सॉरी सॉरी ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -1.6 इंटू 10 to the power -19 और -16 इंटू 10 to the power -18 कूलॉम मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड along the x-axis enter a region where a magnetic field of induction B is along y-axis and an electric field of magnitude 10 to the power 4 volt per meter is along the negative z-axis. If the charged particle continue moving along x-axis, the magnitude of magnetic field is। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल ऑफ चार्ज -16 इंटू 10 to the power -18 कूलॉम मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। किस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, वह मूव इंटर किया रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power 4 volt per meter along z axis। ठीक है, if the charged particle continue moving along x axis, the magnitude of magnetic field की वैल्यू निकालनी है हमें। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें सिंपली इस क्वेश्चन को पहले समझिए आप लोग कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव किधर कर रहा है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में है, अलोंग दी वाई एक्सिस। सपोज अलोंग दी वाई एक्सिस की तरफ हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक्स एक्सिस की तरफ चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दी जेड एक्सिस। ठीक ठीक, हियर चार्ज पार्टिकल मूविंग, हियर मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड। द वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल गिवन, electric field given, we have to find out the value of magnetic field in this question. Okay,
चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। एज वी नो दैट एज वी नो दैट एज वी नो दैट एफ बी इक्वल टू क्यू ई, ठीक। ओके, हियर वी आल्सो नो दैट एफ बी इक्वल टू होता है हमारा, कितना होता है वैल्यू, क्यू बी बी होता है फोर्स की वैल्यू, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इंटू ई। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। if we equate both equation, we get qvb equal to qe. After solving this equation, we get vb equal to e. We put the value of velocity and electric field, we get b equal to e divided by v. And after solving, हम ये सब वैल्यू पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कितनी आ जाएगी, 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b इक्वल टू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। The torque needed to maintain the needle in this position will be, okay, magnetic needle lying parallel to मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक जो नीडल है हमारा वो किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के। इट रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क, कितना वर्क रिक्वायर कर रहा है, W यूनिट, टू टर्न इट टू 60 डिग्री। जो मैग्नेटिक नीडल है हमारा पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। W यूनिट ऑफ वर्क डन हो रहा है जब इस नीडल को कितने 60 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन टर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी, ठीक। हमें इस क्वेश्चन में टर्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एज वी नो दैट वर्क डन हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में वर्क डन इक्वल टू होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। सॉरी एक बार अच्छे से बता देता हूँ लिखकर, ये W इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, ठीक। इनिशियली जो हमारा क्या था, मैग्नेटिक नीडल था, मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, पैरेलल था। जब पैरेलल था तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इफ वी रोटेट दी मैग्नेटिक नीडल बाय 60 डिग्री पे रोटेट कर दे रहे हैं विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। हियर दिस एक्सप्रेशन, इन दिस एक्सप्रेशन initially the value of theta is 0 and finally value of theta is 60 degree. After putting this value we come to get our answer which is mb divided by 2, ठीक है। चलिए देखिए, as we also know that the value of torque is tau equal to mb sin theta, ठीक है। So the value of theta
आफ्टर रोटेटिंग नीडल क्या होगी, 60 डिग्री होगी। देन वी कैन से दैट एम बी साइन थीटा, थीटा जो फाइनली था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देन वी कैन से दैट द टर्क इक्वल टू √3/2 MB, where the value of MB/2 is equal to वर्क डन, वर्क डन के बराबर हो जाएगी MB/2 की वैल्यू हो। ठीक है, सो वी कैन से दैट द टर्क इक्वल टू √3W। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार आपको और समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए एक मैग्नेटिक नीडल था, इनिशियली पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था। कुछ समय बाद इस मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 60 डिग्री पे हम मूव कर दे रहे हैं। ठीक है, 16 डिग्री पे। ठीक है, वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इनिशियली 0 एंड फाइनली 60 डिग्री। वी कम टू नो आवर वर्क डन विच इज MB/2। ठीक है, एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ टर्क इज MB sin theta, we put the value of theta here 60 degree, we get our answer, the value of टर्क इज √3W। जो हमारा टर्क की वैल्यू निकल कर आएगी कितना होगी, टर्क इक्वल टू √3W। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टर्क इक्वल टू √3W। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूरीज टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, ऑप्शन नंबर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम फेरोमैग्नेटिक। कब हमारा जो है क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्यूरीज टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। ठीक है, ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक, ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम फेरोमैग्नेटिक। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। ओके, ये क्यूरियस टेम्परेचर की बात कब आएगी, क्यूरियस टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। एक नज़र हम अब इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट, द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरियस टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वह किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एट ए क्यूरियस टेम्परेचर। ओके, our next question is, a current I ampere flow along an infinitely long straight thin walled tube, then the magnetic induction at any point inside the tube is।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए करंट आई एम्पेयर फ्लो कर रहा है अलोंग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर थिन वेल ट्यूब, ठीक। देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब, ठीक। कितनी होगी, चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। यूजिंग एम्पेयर्स लॉ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड बी सेम फ्रॉम सिमेट्री फ्रॉम एम्पेरिकल सर्किटल लॉ विद बी डॉट डी एल का इंटीग्रल इक्वल टू न्यू नॉट आई। हियर वी टॉक अबाउट होल सर्किट सर्कुलर, ठीक है। So we can put the value of dl equal to 2 pi r, that is b into 2 pi r equal to nu naught I। Here I is 0, करंट क्या है हमारा 0 है, फॉर रेडियस r लेस देन r। जो हमारा रेडियस है वाइल ट्यूब का, जो रेडियस है, जो हमारा रेडियस आर है कैपिटल आर, किसी भी पॉइंट आर एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस जो है आर है स्मॉल आर लेस देन विच इज कैपिटल आर जब होगा, ठीक है। उस पॉइंट के लिए हमारी जो करंट की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक। सो जब हमारी आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस एक्सप्रेशन विल बी 0, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 बिकॉज आवर करेंट इज 0 इनसाइड द रेडियस आर। जो आर रेडियस का हमारा सिस्टम है, कॉइल है, वह उससे कम रेडियस, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है आर फ्रॉम द एक्सिस वह छोटा है कैपिटल आर से, ठीक है। उस पॉइंट के लिए हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। करंट की वैल्यू 0 होगी तो उस पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द ट्यूब के अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज करंट इज 0 इनसाइड। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज 0 मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग वायर कैरीज ए स्टेडी करंट, इट इज बेंट into a circle of 1 turn and the magnetic field at the center of coil is B. It is then bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the coil will be, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लॉन्ग वायर है, लंबी वायर है, लॉन्ग, कैरीज है स्टेडी करंट कैरी किया हुआ है, इट बेंट इनटू द सर्कुलर, एक सर्कुलर कॉइल में बेंड किया गया 1 टर्न में, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना गिवन है, बी। इफ इट बेंट इनटू द सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्म, जब इस स्ट्रेच वायर को हम एन टर्म के एक सर्कुलर कॉइल में सर्कुलर लूप में बेंड कर देते हैं एन टर्म,
n टर्न्स। ठीक है, तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके सेंटर पे। ठीक है, एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप के अंदर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, इनिशियली जो था हमारा लूप था उसकी सरकमस्टेंस कितनी थी, 2 पाई आर। ठीक है, वन टर्म में उसको लॉन्ग वायर को क्या किया गया, टर्न किया गया, एक सर्कुलर कॉइल बनाया गया। ठीक है, इफ वी कन्वर्ट दैट लॉन्ग वायर इनटू n टर्न्स, ठीक है, सो n इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर डैश। यहाँ पे आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2। ठीक है, आर डैश की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, r/2। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी इनसाइड दी सर्कुलर लूप, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। और n टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, n न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर डैश। if we put the value of r dash here, then we get new n new not I divided by 2 pi n new not I divided by 2 पाई r डैश की वैल्यू कितनी है, r/2। ठीक है, r डैश की वैल्यू कितनी है, r/2। जब हम b और b डैश का रेशियो लेंगे तो वी गेट रुकिए इरेज करके हम बता रहे हैं आपको अच्छे से। देखिए, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और फाइनली बी डैश की वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। जब हम इसका रेशियो लेंगे, ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बी डैश की, बी डैश की वैल्यू आ जाएगी बी डैश इक्वल टू n स्क्वायर बी। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को एक बार और देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करेंट। ठीक है, कैरी क्या किया है, करेंट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर कॉइल कितना होता है, बी इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। सॉरी, हम पिछले जो अभी हमने आपको बताया था वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के थ्रू बता दिया था 2 पाई आर, वहाँ पे पाई नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आप 2r बस लिखेंगे। ठीक है, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक टन कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी इक्वल टू न्यू नॉट आई बाई 2r। जब सेम लॉन्ग वायर को n टर्न में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, तब उसके जो सर्कमस्टेंस की वैल्यू है, द सर्कमस्टेंस ऑफ n टर्न लूप इज इक्वल टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द वन टर्न लूप। ठीक है, देन वी कैन से दैट n इंटू 2 पाई आर डैश इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो हमारी आर डैश की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाई n। ठीक है, वी पुट द वैल्यू ऑफ r डैश इन दिस इक्वेशन। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर n लूप
n टर्न लूप, ठीक है। आफ्टर टेकिंग रेशियो ऑफ 1 टर्न मैग्नेटिक फील्ड, एक टर्न लूप के लिए लूप के मैग्नेटिक फील्ड और n टर्न और 1 टर्न का रेशियो जब लेंगे हम तो वैल्यू कितनी आ जाएगी n टर्न मैग्नेटिक फील्ड की, P डैश इक्वल टू n स्क्वायर B। So our right answer will be option number B. The magnetic field due to n turn circular coil is equal to n square into magnetic field due to 1 turn सर्कुलर लूप, ठीक है। ओके, मान लीजिए अब मैं कभी कभी गलती कर दूं तो उसको मैं बाद में बता दूंगा, अगर मैं केयर नहीं करता हूं तभी गलती हो जाती है कभी कभी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius 3 centimeter at a point on the axis at a distance of 4 centimeter from the center is 54 macro tesla. What will be the its value at the center of loop, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर, एट द सेंटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। कितनी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की 54 माइक्रो टेस्ला। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर, सेंटर ऑफ लूप, लूप के सेंटर पे। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। चलिए हम इसके एक्सप्रेशन को भी देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। देखिए एक सर्कुलर लूप है, उससे एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर से कितनी वैल्यू होती है, दिस वैल्यू न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 होता है, ठीक है। और सेंटर पे वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, P डैश इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a, और एक्सिस पे न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वी कैन गेट दिस एक्सप्रेशन। हमें यह एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू ऑफ ए को पुट कर देंगे, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस है, उसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और एक्स की वैल्यू कितनी है 4 एक्स की वैल्यू 4 है, और एक सॉरी ए हमारा क्या है रेडियस है 3, और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है सेंटर का 4 है, ठीक है। जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विच इज़ इक्वल टू 250 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए हो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझें आगे पीछे करके, ठीक है। वीडियो को मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई, P डैश इक्वल टू 250 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 250 माइक्रो टेस्ला, ओके।
Thank you to you all, my dear friends, for watching our video. Go subscribe our channel, like the videos, and share information to your friends about our channel. Thank you to you all, my dear friends.